Hello students, I am Surbhi Jain from Civil Engineering Department, Sistek Gandhinagar, Bhopal. Today we are going to study subject Construction Material and Technology. Subject code is CE302 and this is lecture number 7 of Unit 2. From index we will see following topics which are marked by red color are covered in last video lectures, and today we are going to study aluminium, in which we will study properties, forms, uses and advantages of aluminium. Now, aluminium. What is aluminium? Aluminium occurs in abundance on the surface of the earth. It is available in various forms such as oxides, sulfates, silicates, phosphates, etc., but is commercially produced mainly from bauxite. Aluminium is the third most abundant element after oxygen and silicon and the most abundant metal in the earth crust. It makes up about 8 by weight of the earth's solid surface. Aluminium is remarkable for the metal's low density and for its ability to resist corrosion due to phenomenon of passivation. तो जो एल्यूमिनियम होता है उसकी डेंसिटी, वो एक ऐसा मेटल होता है जिसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा कम होती है और कोरोजन को रेजिस्ट करता है ड्यू टू फिनोमिना ऑफ पैसिवेशन. Structural components made from aluminum and its alloy are vital to the aerospace industry and are important in other areas of transportations and structural materials. तो एल्यूमिनियम के जो कंपोनेंट्स मेनली जो कहाँ यूज़ करते हैं अपन, एरोस्पेस इंडस्ट्रीज वगैरह में. The most useful components of aluminium, at least on a weight basis, are the oxides and sulfates. In nature, aluminium is found only in chemical compounds with other elements such as sulfur, silicon and oxygen. Pure metallic aluminium can be commercially produced only from aluminium oxide ore, occur in all types of clay. Now, properties of aluminium. It is a very good conductor of heat and electricity. You all know this. It is a silvery white metal with a bluish tinge and it exhibits bright luster on a freshly broken surface. अगर आपने उसको ब्रोक किया, अगर एल्यूमिनियम के कोई भी मटेरियल को आपने ब्रेक करा तो आपको उसके ऊपर वाइट कलर आपको दिखाई देगा, है ना. और ये मेटल होता है, सिल्वरी कलर का होता है, ठीक है. उसमें टिंट होता है हल्का सा ब्लिश कलर का. It is a non-magnetic substance. It is highly resistant to corrosion. It is light in weight, malleable and ductile. You all know that the property weight, you know, light weight का होता है. Malleable can be converted into thin sheet. Ductile can be converted into thread. It is very soft. It possesses great toughness and tensile strength. Readily dissolves in HCl. HCl में डिजॉल्व हो जाता है. तो ये उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं एल्यूमिनियम की. नाउ मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम कैन बी रिसाइकल्ड ईजली, और अपन उसको वापस से रिसाइकल करके भी यूज़ कर सकते हो. रिसाइकल्ड ईजली हो जाता है. ऑलमोस्ट ऑल एल्यूमिनियम आर यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन. हाई स्क्रैप वैल्यू. आपको जब इसका अगर आपने कोई कंस्ट्रक्शन में इसको यूज़ किया है उसके बाद आप उसको डिसमेंटल करते हो उस स्ट्रक्चर को, तो जो एल्यूमिनियम आपको मिलता है उसकी जो स्क्रैप वैल्यू होती है बहुत ज़्यादा होती है, हाई होती है. नॉन कोरोसिव एंड नॉन टॉक्सिक, सो यूज्ड फॉर बोथ इंडोर एंड आउटडोर एप्लीकेशन. कोरोसिव भी नहीं है, टॉक्सिक भी नहीं है, टॉक्सिक भी नहीं है, तो इसलिए हम उसको इंडोर एंड आउटडोर एप्लीकेशन में बोथ में यूज़ करते हैं. It resists corrosion by water, snow and moisture without any coating. Lightweight and high strength and flexible. It does not strike spark nor get brittle under extreme cold or heat. Now moving toward next, aluminium as building material. So हम कहाँ aluminium का use करते हैं as a building material? You all have seen windows. In windows frame we are using aluminium.
So air tightness. A well designed aluminum door, window, etc. is perfectly airtight and sealed out for dust and rainwater when closed. This is useful in fully air conditioned building also. आपने देखा होगा डोर्स विंडोज़ वगैरह जो होते हैं एल्यूमिनियम के बनते हैं वो परफेक्टली टाइट होते हैं, सील्ड होते हैं, डस्ट वगैरह रेन वगैरह से बचाते हैं। और फुली अगर एयर कंडीशन बिल्डिंग्स होती हैं वहाँ पे भी हम एल्यूमिनियम का यूज़ करते हैं। ओके, सो नाउ नेक्स्ट इज़ अपीयरेंस। अपीयरेंस भी आप देख सकते हैं, अपीयरेंस भी उनका बहुत अच्छा होता है, कलरफुल आपको मिलते हैं, डिज़ाइन में भी आपको मिल सकते हैं एल्यूमिनियम। अगर डोर वगैरह आप यूज़ कर रहे हैं, विंडो की फ्रेम्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, विंडोज़ में आप यूज़ कर रहे हैं तो बहुत सारे आपको डिज़ाइंस में वो मिल सकता है, कलर भी अलग अलग हो सकता है, ठीक है। डेकोरेटिव पर्पस के लिए भी अपन यूज़ कर सकते हैं। ये ईजिली क्लीनेबल होते हैं, आप इनको ईजिली क्लीन भी कर सकते हैं और कोरोजन नहीं आता है इनमें, है ना। तो नेक्स्ट इज ईज इन फैब्रिकेशन एंड असेंबली। अगर आप उनको फैब्रिकेट करते हैं जैसे कि विंडोज़ वगैरह में बहुत सॉफ्ट होता है, कट ईजिली हो जाता है। फैब्रिकेशन जब आप इनको एक दूसरे मतलब आप इनसे एक कोई कंपोनेंट बनाते हैं, है ना, तो वो ईजिली बन सकता है कोई भी शेप में, ठीक है। असेंबल्ड ईजिली हो जाता है, वेल्डेबल ईजिली वेल्डिंग हो जाती है उसमें। नाउ नेक्स्ट इज हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। बहुत लाइट वेट होता है इसलिए अपन उसको ईजिली हैंडल कर सकते हैं। इनके प्रोडक्ट्स के बड़े बड़े मशीनरी अगर कोई प्रोडक्ट्स बनते हैं तो उनको आप ईजिली हैंडल कर सकते हैं। हैंडल करने के बाद इनको आप ईजिली ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं। ओके, इनमें अगर कोई नट बोल्ट कनेक्शन करना है, स्क्रू कनेक्शन करना है, वेल्डिंग करना है तो वो ईजिली इनमें हो जाती है एल्यूमिनियम के कंपोनेंट्स में। नाउ हाई कोरोजन रेजिस्टेंस। जो कोरोजन जो बिल्डिंग्स वगैरह होती हैं अगर उनमें अगर आपने उनको एक्सटीरियर में यूज़ किया है तो कोई भी कोरोजन नहीं आता है। एल्यूमिनियम बिल्डिंग प्रोडक्ट्स आर मेड फ्रॉम अलॉयज विच आर वेदर प्रूफ, corrosion resistant and immune to the harmful effect of UV rays, ensuring optimal performance over a very long serviceable lifetime। तो आपने देखा होगा बिल्डिंग में जो आजकल बाहर मिरर वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो उनके फ्रेम्स वगैरह में या कोई भी कंपोनेंट बाहर एक्सटीरियर में आप यूज़ करते हो और अगर एल्यूमिनियम का आप बनाते हो तो उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं आता है ना। तो वाटर प्रूफ भी होता है, कोरोजन रेजिस्टेंट भी होता है और यूवी रेज जो हार्मफुल यूवी रेज वगैरह रहती हैं उनसे भी हमको बचाता है और ड्यूरेबल होता है, लाइफ टाइम के लिए सर्विसेबल होता है। ओके, सो नेक्स्ट इज हाई रिफ्लेक्टिविटी। रिफ्लेक्टिविटी में क्या होता है आप देखिए इमेज में आपको दिखाई दे रहा होगा। दिस कैरेक्टरिस्टिक फीचर मेक्स एल्यूमिनियम ए वेरी एफिशिएंट मटेरियल फॉर लाइट मैनेजमेंट। Aluminium solar collectors can be installed to lower energy consumption for artificial lighting and heating in winter, while aluminium shading devices can be used to reduce the need for air conditioning in summer। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा सोलर पैनल्स वगैरह रहते हैं तो वहाँ पे आप एल्यूमिनियम के लिए आप यूज़ करते हैं वहाँ पे, तो आप लाइट मैनेजमेंट के लिए आप यूज़ कर सकते हैं एफिशिएंट मटेरियल एल्यूमिनियम। नाउ नेक्स्ट इज़ हाई स्क्रैप वैल्यू। अपन ने पहले भी डिस्कस किया था, इसकी स्क्रैप वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। जो आप अगर अपने कचड़े वगैरह में अगर ये जो सब जाता है इसको वापस से रिसाइकल हो जाता है, ईजिली रिसाइकल हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें रिसाइकल होती हैं बट जो एल्यूमिनियम है वो ईजिली रिसाइकल हो जाता है, तो इसकी जो स्क्रैप वैल्यू होती है बहुत ज़्यादा होती है इसकी। हाई स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो। इसका जो वेट के अकॉर्डिंग अगर अपन देखें और स्ट्रेंथ, तो इनका जो स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो बहुत ज़्यादा हाई होता है ना। वेट इसका बहुत ज़्यादा कम होता है, उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, सो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ओके, एल्यूमिनियम सेक्शंस आर जनरली थिनर एंड डीपर देन इक्विवेलेंट स्टील सेक्शन टू अचीव द रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी ऑफ सेम लेवल। नाउ मेंटेनेंस कॉस्ट। While aluminum has a natural built-in durability, most aluminum construction products are treated or coated. So मेंटेनेंस कॉस्ट भी इनकी क्या होती है, ठीक ठाक होती है, कोई दिक्कत नहीं होती है मेंटेनेंस कॉस्ट में। फिर इनको अपन ट्रीट ईजिली हो जाते हैं, है ना, पेंट कर देते हैं, कोट कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं जाती है। नाउ एडवांटेजेस ऑफ एल्यूमिनियम। स्लिम प्रोफाइल, आप बहुत पतले पतले इनके कंपोनेंट्स बनाते हैं। ड्यूरेबल बहुत ज़्यादा होता है। लो मेंटेनेंस होता है इनमें, मेंटेनेंस इनका बहुत ज़्यादा
नहीं, ज़्यादा पैसा नहीं लगता है मेंटेनेंस में, एंटी कोरोसिव होता है, कोरोजन जल्दी नहीं आता है इन पे, लाइट एट स्ट्रॉन्ग, लाइट होते हैं तो उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, अवेलेबल इन एनोडाइज्ड एंड बेक्ड विथ फिनिशिंग लॉन्ग लास्टिंग कलर। आप इनको कोई भी जो कलर आप इन पे अप्लाई करते हैं तो वो लॉन्ग लास्टिंग कलर होते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं, वाटर रेजिस्टेंट होता है, सॉल्ट एंड इवन एयर रेसिस्टेंट भी होते हैं ये, है ना। सो ये अपना एडवांटेजेस हो गए हैं। नेक्स्ट इज फॉर्म्स ऑफ एल्यूमिनियम। 4 forms are there: casting based, extrusion based, foil and powdered based, sheet based. Now we are moving toward casting based. Casting based you are seeing in drum, this aluminium material is in liquid form and they are pouring this liquid on any mold, and from that we will get this. In second image you are seeing the product or the component which you want to use. Okay, so this is कास्टिंग बेस्ड, इन विच कोई भी डेकोरेटिव मटेरियल आप यूज़ करने जा रहे हैं या हार्डवेयर फिटिंग्स वगैरह यूज़ करते हैं। बैलेस्टर हेड होता है, बैलेस्टर आपने सबने पता होगा जो स्टीयर्स होते हैं उनमें टॉप में लगा हुआ रहता है बैलेस्टर, है ना। तो वो बैलेस्टर नीचे एक बॉटम पे एंड एक टॉप पे, तो जब अपन जिनको अपन रेलिंग बोलते हैं जिसको पकड़ के हुए अपन जाते हैं तो बैलेस्टर आप वहाँ पे इनको उनको कास्टिंग के लिए एल्यूमिनियम का यूज़ होता है। नाउ नेक्स्ट इज शीट बेस्ड। तो आपको शीट फॉर्म में भी एल्यूमिनियम मिलता है, केबल ट्रेज होती हैं, फ्लैट टाइप फॉल्स सीलिंग होती है। फॉल्स सीलिंग सबको पता होगा, जो अपन रूम में अगर आपकी हाई राइज जो एक्चुअली फ्लोर टू फ्लोर हाइट है बहुत ज़्यादा है और आपको इंटीरियर में रूफ़ के नीचे कुछ ऐसा कुछ मतलब इलेक्ट्रिक कनेक्शन वाला वर्क करना है या कुछ भी फिटिंग्स वगैरह करनी है, आप फॉल सीलिंग कर देते हैं। फॉल सीलिंग मतलब आप सील को थोड़ा सा डाउनवर्ड कर देंगे तो वो अपन एल्यूमिनियम की भी प्रोवाइड कर सकते हैं, है ना। प्री फैब्रिकेटेड हाउसेस भी आपके बनते हैं। फिर रेन वाटर के लिए रेजिंग एंड एंगल ऑफ रूफ के एंगल्स वगैरह के लिए, रूफिंग एंड स्लाइडिंग के लिए, है ना। सो अपन इनको यूज़ करते हैं वहाँ पे। टाइप ऑफ शीट्स अपन देखिए तो डेकोरेटिव शीट्स आपको मिलती है, दिख रही होंगी डेकोरेटिव शीट्स, इस टाइप की डेकोरेटिव शीट्स आपको ये मिलती हैं, तो आप इनको यूज़ कर लेते हैं जो भी आपको पर्पज़ के लिए यूज़ करना है। एप्लीकेशंस उनके हैं शीट एंड प्लेट के, उन्होंने कुछ साइजेस आपको बता दिए हैं, ठीक है। ये फ्लैट भी होती हैं, रोल्ड या फिर कॉइल के फॉर्म में भी पाई जाती हैं, लार्ज साइज़ की भी होती हैं। तो ये वे में अपन जहाँ अपन को जिस वे में यूज़ होता है अपन उनको यूज़ कर सकते हैं। एक्सट्रूशन बेस्ड में आपको पता होगा डोर्स एंड विंडोज़ की फ्रेम्स वगैरह होती हैं, है ना। पैनल्स एंड कर्टन वॉल्स वगैरह होती हैं, जोडेसिक डोम्स वगैरह बड़े बड़े बनाए जाते हैं। ग्रीन हाउस एंड रूफ टॉप्स गार्डन्स होते हैं, नॉर्थ लाइट ग्लेजिंग फ्रेम्स, स्पेस डिवाइडर एंड पार्टीशंस, इन सब में अपन इनको यूज़ करते हैं एक्सट्रूशन बेस्ड को। सो ये भी आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो समझ में तो आ गया होगा, डोर एंड विंडोज़ की फ्रेम्स आपने सबने देखी हुई हैं, है ना। पैनल्स एंड कर्टन वॉल वगैरह होती हैं जो आपने देखा होगा, पार्टीशन जो अपन रूम्स में भी आजकल मतलब एक्चुअली आजकल कंस्ट्रक्शन कैसे हो रहा है आपका, बीम स्लैब बीम कॉलम। सो बीच में जो अपन ब्रिक वॉल को यूज़ ना करके पार्टीशन में वो लोग एल्यूमिनियम का यूज़ कर रहे हैं, तो एल्यूमिनियम का यूज़ कर सकते हैं। डोम्स वगैरह होते हैं, आपने देखा होगा जो एस्थेटिक अपीयरेंस के लिए, कोई एयरपोर्ट वगैरह है या फिर कोई रेलवे स्टेशन वगैरह या फिर कोई आप टेम्पल्स, मस्जिद, चर्च वगैरह, स्कूल्स वगैरह, आजकल वो लोग क्या कर रहे हैं, जो उनके ऊपर का जो उनको क्या करना रहता है कि उनको जो हाइट होती है बिल्डिंग की, मतलब फ्लोर टू फ्लोर हाइट बहुत ज़्यादा चाहिए होती है और कॉलम के बीच में डिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा होती है, तो वो एक्चुअली स्लैब नहीं प्रोवाइड कर सकते वहाँ पे, तो वो लोग एल्यूमिनियम का रूफिंग प्रोवाइड करते हैं और जो कि डोम के फॉर्म में होता है। ग्रीन हाउसेज एंड रूफ टॉप गार्डन्स वगैरह होते हैं, वो सब एल्यूमिनियम के बनते हैं, छत के ऊपर गार्डन्स बनाते हैं।
फिर अगर आपने कोई नॉर्थ लाइट ग्लेजिंग फ्रेम्स होती है, मैं भी आगे आप बताऊंगी आपको। अगर बिल्डिंग के ऊपर कोई बंगलो टाइप है और उसमें आपने ऊपर की तरफ रूफ पे कोई विंडो प्रोवाइड की है स्काई में, मतलब आपको स्काई दिखेगा तो उससे वो प्रोवाइड की जाती है, तो वो एल्यूमिनियम की बनाई जाती है, क्योंकि आपने जो एक्चुअली वो जो विंडो होती है वो स्काई तरफ उसका फेस होगा, तो जो वाटर होगा रेन वाटर का पूरा अंदर इंटीरियर में एक्यूमुलेट हो सकता है हमारे घर में, तो हम वहाँ पे एल्यूमिनियम की विंडो प्रोवाइड करते हैं क्योंकि वो एयर टाइट होती है। ओके, तो कोई डिवाइडर एंड पार्टीशंस वगैरह होते हैं वो सब अपन इसी के करते हैं एल्यूमिनियम के। नाउ फॉल्स सीलिंग, देखिए मैंने आपको मैंने पीछे देखा था, तो ये फॉल्स सीलिंग्स ये सब जनरली आपने देखा होगा कंप्यूटर लैब्स वगैरह में, या फिर ऑफिसेज वगैरह होते हैं, इंस्टीट्यूट्स वगैरह होते हैं, वहाँ पे आपने फॉल्स सीलिंग्स इस टाइप की देखी होंगी। इससे जो लुक होता है बिल्डिंग का वो एनहांस हो जाता है। नेक्स्ट प्री फैब्रिकेटेड हाउस, ये देखिए प्री फैब्रिकेटेड हाउस एल्यूमिनियम के बनते हैं। आपको कुछ नहीं करना, उस फैब्रिकेशंस में आपको लेकर आना है आपके क्या बोलते हैं, जो भी आप एक कंपोनेंट्स लेकर आएंगे और एक के बाद एक आप उनको कनेक्ट करते जाएंगे, कनेक्शन करना है बस। तो इसमें ज़्यादा समय भी नहीं लगता है, ना आपको क्यूरिंग वगैरह के लिए कोई टाइम देना है, ना कुछ टाइम देना है, बस आपने इनको कंस्ट्रक्ट किया और आपने यूज़ कर दिया, ये बना दिया आपने इससे, तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट रेन वाटर आर्टिकल्स, जैसे कि पाइप्स वगैरह होते हैं जो कि रेन वाटर को कैरी करते हैं, सीवेज वाटर को कैरी करते हैं, इन सब को के लिए भी अपन एल्यूमिनियम के पाइप्स यूज़ करते हैं, क्योंकि ये नॉन कोरोसिव होते हैं, कोरोजन इनमें नहीं आता है, तो इसलिए अपन इनको यूज़ करते हैं। गटर के पाइप्स वगैरह होते हैं वो सब अपन जो होता है पाइप्स जो एल्यूमिनियम के अपन प्रोवाइड कर सकते हैं, है ना। डिस्पोजल रेन वाटर होता है, क्योंकि वो सब पूरे टाइम पानी से कॉन्टेक्ट में रहता है, लेकिन फिर भी एल्यूमिनियम में उनमें जंग नहीं आती है, कोरोजन नहीं आता है। सो ये रेन वाटर आर्टिकल्स हो गए। नेक्स्ट इज रिचिंग एंड एंगल ऑफ रूफ। सो आप देख रहे होंगे, जो ये दिख रहा है आपको, ये साइड में जो रूफ का एंगल है या कॉर्नर्स वगैरह हैं, वो सब अपन कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, वो सब एल्यूमिनियम में कर सकते हैं। एल्यूमिनियम बहुत सॉफ्ट होता है, आपको जो भी शेप आपको प्रोवाइड करना है, जो भी एंगल सेक्शन, एल सेक्शन, टी सेक्शन, जो भी प्रोवाइड करना है, आप ईजिली एल्यूमिनियम से कर सकते हैं, है ना। सो इसलिए इसको रिचिंग एंड एंगल ऑफ रूफ में प्रोवाइड करते हैं। सो नेक्स्ट इज इंसुलेटिव फॉइल्स। इंसुलेटिव फॉइल्स वगैरह भी होती हैं, फॉयल वगैरह आपने देखा होगा इंसुलेशन पर्पस के लिए भी। आज के ज़माने में तो यूज़ नहीं करते, पहले अपन इंसुलेशन के लिए जो वायर्स के ऊपर कवरिंग वगैरह होती है वो अपन यूज़ करते थे, इसका एल्यूमिनियम का फॉयल, कवर फॉयल, है ना। सो यूज़ करते हैं। एयर कंडीशनिंग में भी डक्ट्स में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज पेंट। एल्यूमिनियम के पेंट भी बनते हैं, पाउडर्ड होता है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम पाउडर बेस्ड पेंट आर यूज टू ग्रांट बिल्डिंग प्रोटेक्शन अगेंस्ट कोरोजन। कोरोजन से बिल्डिंग को बचाने के लिए अपन पेंट्स भी बनाए जाते हैं एल्यूमिनियम के। नेक्स्ट इज फेशिया पैनल्स एंड कर्टन वॉल। सो कर्टन वॉल भी बनाई जाती है, आपने देखा होगा कर्टन वॉल्स वगैरह होती हैं, जैसे कि मैंने जैसे कि अभी आपको बताया कि आप ब्रिक वगैरह की नहीं यूज़ कर रहे हैं, सो आप वहाँ पे एल्यूमिनियम का यूज़ कर सकते हैं, शेड यूज़ कर सकते हैं। इनमें जो लॉक करने की लॉकिंग जो प्रॉपर्टी होती है, मतलब कनेक्शन प्रॉपर्टी होती है, बहुत ईजिली हो जाती है, लाइट वेटेड होते हैं, ईजिली आप कनेक्ट इनको कर सकते हैं, ठीक है। जियोडेसिक डोम्स, जो मैं अपने पहले बात किया था, ये देखिए ये डोम्स कवरिंग इसकी देखिए टॉप से देखिए, तो इस वे में अपन डोम्स भी एल्यूमिनियम के बना सकते हैं, है ना। कोई भी आपको जो शेप आपको प्रोवाइड करना है कर सकते हैं, इंटरलॉकिंग अच्छे से इनमें वैसे ही हो जाती है। नेक्स्ट इज़ ग्रीन हाउसेज। देखिए ग्रीन हाउसेज में ये जो आप देख रहे हैं अंदर आपने प्लांटेशन वगैरह किया हुआ है, तो ज़्यादा हीट वगैरह अंदर ट्रांसफ़र भी नहीं हो पाएगी, तो आप यहाँ पे ग्रीन हाउस बिल्डिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। रूफ टॉप गार्डन्स में भी यूज़ करते हैं, छत के ऊपर अगर आपने कोई गार्डन बनाया है तो वहाँ पे रूफ टॉप में आप यूज़ कर सकते हैं रूफ़ के लिए एल्यूमिनियम का, है ना। डेकोरेटिव पर्पस के लिए भी यूज़ हो जाता है, क्योंकि आप इसमें डिज़ाइन भी बहुत सारी आती हैं, है ना, तो ये आपका ये समझ में आ जाएगा। नॉर्थ लाइट ग्लेजिंग फ्रेम्स जो अपन बात कर रहे थे, ये देखिए टॉप पे आप देख रहे होंगे बिल्डिंग्स में बने हुए हैं ये ग्लेजिंग फ्रेम्स बने, ये फ्रेम्स के लिए अपन इनको यूज़ करते हैं। आप तो यहाँ पे ग्लास वगैरह यूज़ करते हैं, बट फ्रेम भी तो आपकी फ्रेम ही तो मेन होती है, अगर फ्रेम एयर टाइट नहीं हुई तो फिर क्या हो जाएगा, पानी अंदर सीप करने लग जाएगा, तो वही होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज रिसाइकलिंग। द यूज़ ऑफ रिसाइकल्ड एल्यूमिनियम सेव्स 95% ऑफ द energy and
avoid 95% of the emission associated with the production of the metal from ore, and it reduces the amount of waste consigned to landfill. रिसाइकलिंग भी, इसका जो रिसाइकलिंग होता है वो रिसाइकल आप कर ही सकते हैं इसको. सो requires only 5% of the original energy input, so easy to recycle, perfect eco metal. तो 5% ओरिजिनल एनर्जी आपको रिक्वायर्ड होती है, की ज़रूरत पड़ती है. वेरी लिटिल एल्यूमिनियम इज़ लॉस्ट इन द रिमेल्टिंग प्रोसेस. मतलब जो आपका वेस्ट होता है, आप वापस से मेल्ट करते हो तो जो भी वेस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है. ठीक है, आपको पता ही है, इसमें अपन ने पहले ही पढ़ लिया था सेकंड पॉइंट कि स्क्रैप वैल्यू इसकी बहुत ज़्यादा होती है. ओके, नाउ डिफरेंस. Aluminium is much more costly than UPVC. यूपीवीसी से जो एल्यूमिनियम की कॉस्ट होती है बहुत ज़्यादा होती है. आपने पता होगा पीवीसी वगैरह के पाइप्स वगैरह होते हैं वो सब ज़्यादा कॉस्टलियर होते हैं एल्यूमिनियम से. ड्यूरेबिलिटी, ऑल्दो यूपीवीसी हैज़ ए लॉन्ग लाइफ, इट डिग्रेड ओवर अ लॉन्ग टाइम, बट एल्यूमिनियम डज नॉट कोरोड. कोरोजन नहीं आता, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है एल्यूमिनियम. Cleaner profile, UPVC has a thick channel profile while aluminum is thinner, but the strength of aluminum is good. Aluminum thinner होते हैं but उनकी strength बहुत अच्छी होती है. Flexibility in UPVC is less than compared to aluminum. Aluminum में ज़्यादा flexibility होती है, ज़्यादा flexible होते हैं. आपको जो भी शेप में उनको मोल्ड करना है या फिर जो भी शेप में आप उनको बैंड करेंगे वो बैंड ईजिली हो जाते हैं, बट क्रैक नहीं करते हैं. लेकिन यूपीवीसी में क्रैक आ जाते हैं. कलर्स, एल्यूमिनियम ऑफर्स द वाइड रेंज ऑफ कलर्स एज कम्पेयर टू यूपीवीसी. आपको जो भी कलर आपको प्रोवाइड करना है, एल्यूमिनियम में जो भी कलर आपको चाहिए वो आप यूज़ कर सकते हैं. यूपीवीसी में आपको इस तरीके की वैरायटीज़ नहीं मिलती हैं कलर्स. ओके, सो आज आपने एल्यूमिनियम पे आपकी क्लास ख़त्म हुई. एल्यूमिनियम आपने पढ़ लिया है. ये एल्यूमिनियम का कोई ख़ास कोई भी गवर्नमेंट सिलेबस में या इम्पोर्टेंस इसका बिल्कुल भी नहीं है, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर आरजीपीवी सिलेबस. तो आप इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए और इम्पॉर्टेंट अपने हिसाब से नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए. जैसे कि एल्यूमिनियम की आपने अपने हिसाब से डेफिनेशन, इसमें से जो भी आपको अच्छे पॉइंट लगे वो आपने लिख लिया. सब याद करने की ज़रूरत नहीं है, सारा याद नहीं करते हैं, इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आपको इसको आरजीपीवी के पेपर में लिखना होगा. अभी कोई भरोसा नहीं है कि एग्ज़ाम्स वगैरह का कैसे क्या होंगे भी कि नहीं होंगे भी तो कब होंगे. सो ये कुछ हमको पता नहीं है, इसलिए आप अपने हिसाब से अपने नोट्स प्रिपेयर करके चलिए. यही आपकी क्लासेस हैं, अब ऑफलाइन क्लासेस नहीं लगेंगी. अक्टूबर तक आपकी ये सारी क्लासेस चलेंगी, उसके बाद एग्ज़ाम्स होंगे. सो प्लीज़ अच्छे से पढ़ाई कर लीजिए, है ना. और जो भी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनेंगे इसी में पढ़ेंगे. डाउट सेशन में अपन इसको एक बार देख लेंगे, अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो डाउट सेशन के पहले एक बार 2-3 बार वीडियो देखोगे तभी तो डाउट पूछ पाओगे. ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स.